Good morning, children. So today we are going to start the new chapter. The name of the chapter is the living world. Without knowing what are living beings, study of biology is of no use. Okay? If you want to study biology, very first thing is that we must know what are living beings. Now, what are living beings? We have seen living beings right from our birth. Day one से हम living beings को देखते आ रहे हैं around us, especially we have seen very first thing that is mother, a newly born child who don't recognize anyone else but at least recognize his mother. ठीक है, मदर को तो हर इंडिविजुअल पहचानता ही है सबसे पहला, है ना. So the question is how is it that an organism can recognize living and non-living? How will you say that whether the given object or a given thing is living or non-living? More or less, the living being also has certain lifespan. So after that he dies. So the dead things and the living things are also different. So we must know the difference between living and dead animal. So वो क्या होते हैं? क्या है जो चीज जो किसी को लिविंग बना रही है और किसी को डेड बना रही है? कोई किसी के अंदर certain character दिख रहे हैं, किसी में कोई character नहीं दिख रहे हैं. Why? How it is made possible? That all things will be studied in this chapter. So in this chapter we are going to study what are living beings, है ना, और क्या कहते हैं being alive और जो भी है. तो हम देखते हैं इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर. तो ये हमारा chapter the living world. Okay, so the thing is that is what is living? Living किसको कहेंगे? किसको कहेंगे living? So living being has got certain characteristics. वो those organisms which can show these characteristics. See, it is very difficult to define life. अगर आपसे कोई कहे कि living life क्या होती है, तो आप नहीं बोल सकते. But what we can tell is that is what are the characteristics of living being. तो वो हम बता सकते हैं. तो living being की क्या क्या characteristics? What are the characteristics shown by the living beings? Let us see. Let us highlight them. है ना? तो हम एक एक करके पढ़ते हैं living being के characteristics. Very first thing, जितनी भी living beings हैं, ठीक है? All the living beings जो है, they show following things. ठीक है? जैसे very first thing is that they show growth, movement, then what we call organization, different exercises, metabolism, which response to stimuli, response to stimuli, right? This is three words. Okay. So there are some of the characteristics we see in the living beings. All the living beings जो होते हैं, they show growth. क्या हो रहा है, ये बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसा कुछ. So very first thing it is that is all the living being or living organisms grow. So increase in size. Growth की कैसे definition देंगे? How do we define growth? Growth is actually increase in size or increase in mass or increase in number of cells, one or more than one of these. Okay, an ability of increase in size, increase in mass or increase in number of cells. अगर आप एक मुर्गी का अंडा देखेंगे, अंडा का साइज नहीं बढ़ रहा, but your growth is taking place. Why? Because earlier it had only one cell, then 1 का 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, and होते होते 21 days के अंदर इसमें millions and millions of cells will be there and a chick will form. ठीक है? So the number of cells are increasing, but the size is same. Rather the size may be small. ठीक है? एक चिक और एक क्या कहते हैं अंडे के साइज के साथ चिक तो फिर से
thing what we can see is जैसे amoeba है. Now amoeba size cannot increase more than a certain size. So there क्या होगा? That is no sooner the size increases than the cell divides. Okay, and if we talk about body like Earth, human beings, we all are born this much. इतने थे, इतने yes, Yuvika, you want to say something? Sir, the screen is not visible, like it's not coming. It is not visible. No, sir. Okay, now I am visible. आगे का पोर्ट काम नहीं कर रहा. Yes, sir. Who is that? So when I shared the book, you did not see the book. No, sir. Oh, good. No. So what I was saying, that is all the living beings show growth. और growth कैसी होती है? Growth is maybe three things. Maybe increase in size, maybe increase in number of cells, maybe increase in what they call mass. तो हम जब पैदा हो गए इतने से तो इतने से जब हम थे उससे हम इतने बड़े हो गए. I am 6 feet tall, and when I born, maybe my weight may be somewhere about 3 kg. 3 किलो, 3.5 किलो नहीं बच्चा पैदा होता है, इससे ज्यादा भारी तो फिर वो एक्सट्रीम वेट्स आ जाते हैं. There are some cases where the children may be extremely what they call heavy, तो वो different thing है. Otherwise जो होते हैं सारे बच्चे 3 किलो के आसपास. 3 किलो से कोई बच्चा बड़ा होकर तो 60 का बच्चा 70, 100, 180, 400 किलो तक के लोग हमने देखे है ना. There are people who have grown to 700 kg. पैदा हुआ तो 3 किलो का था, 700 किलो कहाँ से हो गया. और नो बाय ऑन एवरेज दिस इज एट अराउंड 50, 55, 60, 65. 65 एक एवरेज वेट मान लो किसी भी बड़े आदमी का एडल्ट. तो दैट मींस द मास इज इंक्रीजिंग, एंड व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न देयर वर सम मिलियन सेल्स, एंड उसके बाद नंबर ऑफ न्यू सेल्स हैव बीन एडेड. सो ग्रोथ इज वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग्स. And growth is because of the three things I said. वो सब हो सकती है, अलग-अलग हो सकती है. That is, in the growth, size will increase. ठीक है? In the growth, mass will increase. Size increase होगा तो mass भी increase होगा. Because of mass is increasing, number of cells are increasing. ठीक है? But there are some cases in which the size is not increasing. Size is not increasing. But mass is also not increasing. But number of cells are increasing. तो हमको ये consider करना पड़ेगा the different type of condition. ठीक है? We cannot always be harsh कि भाई साइज को बढ़ना ही चाहिए सर. ये तो साइज को बढ़ा ही नहीं है तो इसका ग्रोथ हो ही नहीं. नहीं, वो गलत हो जाएगा है ना. तो साइज इज नॉट ऑलवेज अ क्राइटेरिया. तो ये चीज अपन को देखना है ना. और उसके बाद अपन ने देखा ग्रोथ के साथ में एक और चीज होती है, उसको कहते हैं डेवलपमेंट. ग्रोथ के साथ में एक और चीज होती है, उसको कहते हैं डेवलपमेंट. नाउ व्हाट इज मेंट बाय डेवलपमेंट? What is meant by development? हम development किस कहते हैं? What is the development of city? When we talk about development of city is going on. When we talk about the development of a house, when we say the development taking place in the school, तो सब वो बहुत सारे पेड़ लगे हैं, new rooms have been added, labs have been constructed, ठीक है, new computers have been added. अगर घर में होगा तो हम कहेंगे ये क्या चल रहा है, किससे पूछते ना अपन, और क्या हल्ले गुल्ले क्या चल रहा है, तो वो क्या कहता है बंदा सामने वाला, अरे बढ़िया है सर, मजा है सर, अरे यार वो बोनस आ गया तो हमने कार खरीदी, ठीक है, या बच्चे की शादी करा दी, या फिर वो पौधा हो गया एक हमारे. तो एनी न्यू एडिशन इन द एग्जिस्टिंग वन इज कॉल्ड अ डेवलपमेंट. सो डेवलपमेंट इज द यूनिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग. नॉन लिविंग थोड़ी डेवलप होंगे. ये चेयर जितनी बड़ी थी, ये बोर्ड जितना बड़ा था, ये माउस जितना बड़ा था लाए थे दुकान से, वैसा ही है. ये चश्मा में इसके टाइम से वेरी ऑलमोस्ट एन ईयर है ना, उतना ही है. पेन छोटू तो तब से लेकर के अभी तक उतना ही है. तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा. नो साइज इज इंक्रीजिंग, एंड इफ द साइज इज नॉट इंक्रीजिंग
development is not, that is new things are not added. So how will you say that the development is taking? So development is a unique feature of all living beings. Non-living can't develop करते, उनको तो हमको कराना पड़ता है. हाँ, there are some things जैसे mountains हैं, है ना, वो ग्रो भी करते हैं, डेजर्ट है वो ग्रो भी कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ हो सकता है वो एक सर्टेन पैटर्न रहेगा, वोल्केनो इरप्ट्स, वो ग्रो कर सकता है, तो वो हो सकते हैं. बट देयर ग्रोथ एंड आवर ग्रोथ इज डिफरेंट. ये जितनी भी चीजें उनकी ग्रोथ बाहर से होती है, हमारी ग्रोथ अंदर से होती है, फ्रॉम इनसाइड. ठीक है. सेकेंडली देयर इज अ फिक्स्ड पैटर्न ऑफ ग्रोथ इन केस ऑफ अर्थ. अभी हम ये कोई पक्का नहीं मान सकते कि भाई डेजर्ट जो है वो किस तरह से ग्रो करा था, इस तरफ कितना जाएगा, इस तरफ कितना, वो मालूम है हमारा हाथ कितना डेवलप होता है, ज्यादा थोड़ी. We are not seen a man whose left hand is right hand is going to 3 feet, left hand is going to 8 feet. No. There will be a definite size of growth. तो वैसे डेवलपमेंट भी हम जानते हैं, भाई 15-16 साल हो गए, ऊंचे आने लग जाएंगे, एडल्ट लेवल पर जाएंगे, गर्ल्स ब्रेस्ट बनने लग जाएंगे, है ना, और अंडा वाला आने लग जाएंगे. छोटा बच्चा रहता है तो उसको बहुत सारी चीजें जो है कम होती है, हम जानते हैं, यहाँ पर हड्डी नहीं होती, वो बाद में डेवलप होने लगती है. A child may be having 260 bones, धीरे कम होके 208 पे आ जाएंगे. So there are some changes taking place, है ना, और वो सेट है हमेशा, वो लिविंग बीइंग्स में वैसे ही होंगे. So this way when we see, so growth and development are the unique feature of all living beings. No non-living things, either they don't grow at all, or if they grow, their growth patterns are much different from that of the living beings growth. ठीक है. लिविंग बीइंग की ग्रोथ अलग ही तरह की होती है, नॉन लिविंग की ग्रोथ जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है. तो आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समझ आ गए. मूवमेंट एंड लोकोमोशन. मूवमेंट के बाद में एक और वर्ड डाल देते हैं, लोकोमोशन. What is movement? Movement is change in position with respect to time and with respect to original position. ठीक है. मैं ये देखिए यहाँ से, पर मेरे पैर नहीं है. I am standing there. I raise my hand to get back. ठीक है. But the body is stationary as well. So if the body is stationary, but there is some change in position with the respect of the original position with time, then it is called movement. And अगर body की position भी shift हो जाए, body move from one place to another, then we call it as a locomotion. So living beings can show movement at least. Although locomotion is also movement, but not all movement are locomotion. ठीक है. पेड़ों के पत्ते, आप 10th क्लास में हमने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ा था. We have studied there are different types of movement shown by the plants. The opening and closing of the flower, opening and closing of the stomata, then touch me not leaves. ठीक है. They all are showing movement. Movement तो होता है. Living beings, all the living beings will show movement. Whether they are unicellular, whether they are multicellular, whether they are free floating, whether they are stationary, whether they are on land, whether they are water, or when they are in air, definitely करेंगे. ठीक है. तो मूवमेंट जो है, लोकोमोशन आर यूनिक फीचर. नाउ वी कैन मूव एज पर आवर डिजायर. हमारी इच्छा के हिसाब से हम चल सकते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट विंड चलेगी तो कभी इधर चलेगी, कभी उधर चलेगी, और तो डिपेंड करेगा कि प्रेशर कैसा है. ठीक है. व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस है, व्हाट इज द हीट, है ना, अनइक्वल हीट दैट विल लीड टू द विंड ब्लोइंग. बट हमारे साथ ऐसा नहीं है. यहाँ हमारी मर्जी होगी, हम उधर जाएं तो हमारी मर्जी जा सकते हैं, हमारी मर्जी को हम हाथ ऊपर उठा सकते हैं, हमारी मर्जी कर सकते हैं. स्टोमेटा ओपन क्लोज फिक्स है. ठीक है. तो ये मूवमेंट लोकोमोशन जो है, दे आर अगेन ए यूनिक फीचर. एंड व्हाई मूवमेंट आर नेसेसरी? मूवमेंट आर नेसेसरी और लोकोमोशन आर नेसेसरी in order to get their food. Suppose जानवर है तो अपना खाना ढूंढेगा, चलना पड़ेगा उसको एक एक दूसरे. तो chewing food, moving food, the protection of the body, and saving their body from the danger, or for the plants है तो उनका काम है जैसे to attract the insect for the pollination and all. जो भी है, there are certain functions for which they generally locomotion जो होते हैं वो 3 पर्पस के होते हैं. They are either for the search of food, ठीक है, और second they are for what you call protection against the predators, or third one is actually for the mating. उन जानवर हैं, उनको अपना रिप्रोडक्शन करना है, उनको अपनी फीमेल की सर्च में जाना पड़ेगा. एंड और
तो ये सारे कारण हैं जिनके के चलते उनमें मूवमेंट होता है, ठीक है। मूवमेंट एंड लोकोमोशन इज क्लियर। लिविंग बीइंग्स कैन ओनली शो मूवमेंट, नॉन लिविंग भी करते हैं मूवमेंट, ऐसा कहाँ है? हवा चल रही होती है, पानी मूव कर रहा होता है, बट दे कांट मूव देयर ओन। These are the other things, other physical forces which are guiding, which are causing the movement. हमारा तो मूवमेंट हमारी मर्जी से होता है, इंटरनली होता है। हम जाएंगे, हम चाहेंगे तो जाएंगे, हम चाहेंगे तो ना जाएंगे, ठीक है। सो मूवमेंट इन द लिविंग बीइंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट इन नॉन लिविंग बीइंग्स। नेक्स्ट है डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन। ऑल द लिविंग बीइंग्स व्हिच यू हैव सीन सो फार इन योर लाइफ, यू आर वेरी मच श्योर कि उसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। If you are to see any human being from anywhere in the world, वो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो डिफरेंट जाति का हो, चाहे वो डिफरेंट ओरिजिन का हो, है ना, कि वो अफ्रीकन हो सकता है, वो अमेरिकन हो सकता है, ये यूरोपियन हो सकता है, वो ऑस्ट्रेलियन हो सकता है, वो चंगेजी हो सकता है, मतलब चाइनीज हो सकता है, वो कुछ भी हो, आंखें तो दो ही रहेंगी, नाक तो एक ही रहेगी, कान तो दो ही रहेंगे, मुंह में दांत तो 32 ही रहेंगे, मतलब टूट जाए वो बात अलग है, ठीक है। लिप्स तो ऐसे दो ही रहेंगे, है ना। वी नो दैट विच प्लेस ऑफ द बॉडी विल हैव हार्ट एंड लंग्स, लिवर एंड किडनी एंड ब्रेन एंड अदर पार्ट्स, so they all are definite organized. Can you find any two schools which are exactly the same? जहाँ पे प्रिंसिपल का ऑफिस वहीं का वहीं हो, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस वहीं का वहीं हो, बायो का लैब वहीं का वहीं हो, क्लास रूम वहीं का वहीं हो, exact replica of any two schools. चलो ये तो मैन मेड है, बन भी जाएगा। Can you have exact replica of two mountain or a river or a plain or a valley or anything? Can you get any two exact simple exact replica of a stone? होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। कंपोजिशन एक जगह मिलेगा आपको, दो स्टोन के अंदर वो मिल सकता है, चलो एक स्टोन का टुकड़ा होता है, but if you get the two stones from the two different origin, can the composition of the objects will be same? नहीं, हमारे तो है भी है। लिविंग बीइंग, ह्यूमन बीइंग, आप दुनिया में किसी भी तरह से उठा लीजिए, उसके अंदर सेम टाइप की चीजें मिलेंगी आपको, सेम टाइप ऑफ ऑर्गन, सेम टाइप ऑफ सिस्टम, सेम टाइप ऑफ थिंग्स, so that makes them very unique. तो लिविंग बीइंग जो होते हैं इनमें डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन है, नो सच ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन द नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में कहां से आएंगे सब ऑर्गेनाइजेशन, है ना वो। एंड देन नेक्स्ट इज डेफिनेट लाइफ साइकिल। डेफिनेट लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल जो है लिविंग बीइंग्स की पक्की है कि वो सबके सब कभी न कभी पैदा हुए हैं, देन दे ग्रो, देन दे बिकम मैच्योर, देन दे रिप्रोड्यूस एंड देन दे टर्न ओल्ड एंड अल्टीमेटली दे डाई। सारे के सारे लिविंग ये सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं क्या, कि वो क्या बॉर्न समटाइम, देन दे ग्रो समटाइम, then they mature, then they get old and then die. ठीक है ना, डेथ तो कभी भी आ सकती है, मेच्योरिटी टाइम, ग्रोथ के टाइम पे आ सकती है, पैदा भी मरा हुआ हो सकता है, पैदा होते भी मर सकता है, बट व्हेन इट मैच्योर तो फिर यहाँ पे एक और काम हो रहा है दैट दे कैन रिप्रोड्यूस। They can reproduce to add new, ठीक है। सो ये डेथ तो क्या कभी भी आ सकती है, मरना तो कभी, तो जरूरी नहीं है कि हर आदमी ओल्ड होके ही मरे, पैदा होते ही मरा हुआ भी पैदा हो सकता है, पैदा से पहले ही मर सकता है, ठीक है। तो ऑल दीज आर थिंग्स, ये तो कॉमन है, ये तो हो सकता है, लेकिन जो भी है लाइफ साइकिल तो वैसे ही चलती है ना, लाइफ साइकिल तो ऐसे, नोबडी विल बी ओल्ड, बॉर्न ओल्ड एंड देन उसके बाद वो जवान होता है, ऐसा तो कभी नहीं, या ऐसा भी नहीं हुआ कि वन इज बॉर्न, क्या कहते हैं, बॉर्न एंड उसके बाद ग्रो करा, मैच्योर हुआ, फिर ओल्ड हुआ, फिर वापस जवान हुआ, ठीक है। द सिस्टम इज टू बी फॉलोड, सेम सिस्टम, दैट इज दे विल बी बॉर्न समटाइम, देन दे विल बी ग्रोइंग, ग्रो करने के बाद दे विल बिकम मैच्योर एंड आफ्टर मैच्योरिटी दे बिकम ओल्ड, ओल्ड होने के बाद तो मरेंगे, तो उनसे पहले उनके अंदर कुछ ऐसा सिस्टम आ जाएगा, समथिंग विल बी, सम चेंजेस विल टेक प्लेस, है ना। सो मैच्योर जब है तभी वो अपना रिप्लेसमेंट छोड़ के जाएंगे, सो दैट रिप्रोडक्शन इज वेरी लेटर, उसको हमने बाद में
तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि मतलब जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो उनका एक डेफिनेट लाइफ साइकिल, ऐसा कोई लाइफ साइकिल थोड़ी होता दूसरी चीज, ठीक है। वी नो दैट द एवरेज लाइफ स्पैन इज आल्सो मोर और लेस हर स्पीशीज का जो है एक एवरेज लाइफ स्पैन, ठीक है। एक किसान को मालूम है कि ये फसल जो है वो 4 महीने में पक जाएगी, कोई फिर ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं भैया मैं तो 4 महीने में क्यों, मैंने तो बॉर्नविटा खाया है, मैं तो 2 साल तक जीऊंगा, ऐसा नहीं होता। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। सम में ब्लूम फर्स्ट, सम में ब्लूम लिटिल लेट, दिस मच भी पॉसिबल, बट वन कैन नॉट हैव दिस मच कि वो 2 साल तक जिएगा मक्के का पेड़, ऐसा तो होता ही नहीं है ना। तो लिविंग बीइंग्स की लाइफ साइकिल डेफिनेट है, एंड इन द लाइफ साइकिल दे इवन मैच्योर एंड देन दे स्टार्ट ग्रोइंग। फिर क्या है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। मेटाबॉलिज्म थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसको हम बाद की क्लास में पढ़ेंगे। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, every living being जो है they show certain type of response to the certain type of changes, है ना। हर लिविंग being, इवन एक अमीबा को पकड़ लीजिए, बीकर में है अमीबा, एक जगह पे बैठा हुआ है, आप जिस जगह पे वो है वहां पे थोड़ा सा गर्म कर दीजिए तो it will run away from that part. If you put a drop of acid there in that part where the amoeba is staying, it will run away from there. So how amoeba come to know कि वहाँ acid है? How amoeba come to know that there is acid and he has to run away from there? ठीक है। So there are some ways by which they come to know, है ना। तो वो है जिससे उनको पता पड़ जाता है कि वहाँ पे मौसम जो है वो ठीक नहीं, उनको वहाँ से हटना है। So response now, what type of response an organism will show that will depend from individual to individual, हाँ। And वो जो है ओके तो वो रेस्पॉन्स जो है वो डिग्री ऑफ रेस्पॉन्स जो है वो स्पीशीज टू स्पीशीज डिपेंड करता है। नाउ इफ यू थिंक दैट द प्लांट विल हियर, तो प्लांट डोंट हैव एन एबिलिटी टू हियर, ठीक है। बट प्लांट कैन शो रेस्पॉन्स टू द लाइट, प्लांट कैन शो रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी, प्लांट कैन शो रेस्पॉन्स टू वाटर, प्लांट कैन शो रेस्पॉन्स टू सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स, प्लांट कैन शो रेस्पॉन्स टू सनलाइट एंड ऑल, ठीक है। और एनिमल जो होते हैं दे शो वैरायटी ऑफ रेस्पॉन्सेस डिपेंडिंग, एंड वी ह्यूमन बीइंग हम तो सबसे ज्यादा टाइप का रिस्पॉन्स दिखाते हैं, जरा सी आवाज से लेकर बड़े बड़ी आवाज तक, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड कलर्स एंड ऑल, है ना। तो ऑल सारी चीजों के लिए हमारा रिस्पॉन्स जो है, द डिग्री ऑफ आवर रिस्पॉन्स इज मच 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 बेटर देन द रिस्पॉन्स व्हिच आर शोन बाय मोस्ट ऑफ द अदर ऑर्गन, ठीक है। तो ये चीजें होंगी जो जो लिविंग बीइंग को खास बनाती है। रिस्पॉन्स तक का हमने आज पढ़ लिया, and the next class, in the tomorrow's class, we shall continue tomorrow तो शायद छुट्टी है, तो फिर परसों की क्लास, परसों की क्लास के अंदर जो है उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अब तक में पढ़े हुए मैंने आपको I already given you topic for the PT and also given you topic for project, दिया है ना मैंने, हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम। Draw a label diagram of human respiratory system and mark each function of each part. तो ये मैंने आपको respiratory system का subject enrichment की activity दी है, and chapter which will be coming for the PT will be the 17th chapter, last chapter which we have finished yesterday. छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ नहीं है उसके अंदर, है ना। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, और ड्रॉ करने का तो आएगा आ सकता होगा शायद, और ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस के कुछ क्वेश्चंस, और मैच करने के कुछ क्वेश्चंस है। देखिए सो फार तो इट इज क्या कहते हैं ऑनलाइन, अगर सरकार ने ऑफलाइन के लिए अलाउ कर दिया तो ठीक है। सो दैट्स ऑल, keep studying, and if you got any doubt you can ask me even now. पिछले पढ़े हुए में कोई भी दिक्कत हो अगर आपको, कुछ भी पूछ सकते हैं आप, पूछना है। ओके देन आई एम पुटिंग दिस मीटिंग ऑफ, जैसे तभी मेरे पास टाइम है थोड़ा बहुत, मैं चाहे तो इस चीज को थोड़ा सा और आगे ले सकता है।
response to stimuli. Why living being has to show response to the stimuli? Responses जो है वो internal changes के लिए भी हो सकते हैं, external changes के लिए भी हो सकते हैं. Internal changes क्या है? Internally हमारी बॉडी में बहुत सारे changes. क्या changes हो रहे हैं? जैसे पानी की कमी हो जाती है तो प्यास लग जाती है, जैसे ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो भूख लग जाती है, जैसे इफ आवर बॉडी जैसे एसिडिटी हो जाए स्टमक के अंदर तो जलन सी होने लगती है. ठीक है, तो ये इंटरनल है. अगर आप इफ यू कीप सिटिंग इन अ पर्टिकुलर पोस्चर एंड द ब्लड सप्लाई स्टॉप्स टू दैट पर्टिकुलर पार्ट, देन यू गेट सम पिंचिंग, जैसा ऐसा लगता है हाथों चुभ रहे हैं. ठीक है, so that is also a response to the toxin supply decrease. Not always, but number of times it happens. ठीक है, if more light falls into your eyes, तो वो भी एक response है, and then your eyes will जो है that will close, है ना, और वो भी एक response है. External response क्या, बाहर से बहुत सारी टाइप के response, particular type of sound, the light, the bright light and all. है ना, उसके अलावा टेम्परेचर, हीट, गर्मी लग रही है तो आपकी बॉडी अपना पसीना निकालना है जैसे, तो ये है. और मेनी अदर टाइप ऑफ रेस्पॉन्सेस थ्रू. तो आपकी बॉडी साउंड के लिए रिस्पॉन्स करती है, लाइट के लिए रिस्पॉन्स करती है, टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्स करती है, और जगह पे कोई टाइप के प्रेजेंस के लिए रिस्पॉन्स करती है. एंड इससे होता क्या है, व्हाई व्हाट वर यू थिंकिंग, द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई आर हेल्पिंग अस टू गेट थ्री थिंग्स. पहली बात, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल द डेंजरस कंडीशन. अगर आपको कहीं पे धूप ज्यादा लग रही है तो आप नहीं खड़े रहेंगे क्या? If you get shade is there somewhere, get to see shade is there somewhere, definitely you will move to the shady region. तो कौन खड़ा रहेगा भाई वहाँ पे, हैं? तो आपके ऊपर पानी गिर रहा है तो आप अम्ब्रेला निकाल लेंगे और you will move to shade. और किसी के पास अम्ब्रेला भी हो लेकिन वो शेड में भी नहीं जा रहा, बारिश में भीग रहा है, अम्ब्रेला भी नहीं सूख रहा है, तो फिर आप क्या कहेंगे उसको, आपको बताइए, है ना. तो वो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है. तो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डेंजरस सिचुएशन. रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई also help us to detect our food. वहाँ से जा रहा हो कोई, अगर मान लीजिए आप किसी जंगल में से या किसी जगह से जा रहे हैं, you find certain sweets, fruits lying on a plant which you can break, pluck, आप जाके तोड़ लेंगे, खा लेंगे. Animals उनके लिए कोई रूल्स नहीं, birds के लिए कोई रूल्स नहीं है, they go to any plant and they eat, है ना. तो वो भी हो गए. और तीसरा, mate के लिए they are also responsible. So actually movement and locomotion is ultimately guided by the changes which they see. Okay, that's all for today's class children. In the next class we will continue this chapter. Okay.